we will go back to the year 1887 when accidentally Heinrich Hertz discovered the photoelectric emission processes. He only just discovered by accidentally. During his experiment on electromagnetic wave, Heinrich Hertz observed that the high voltage spark across the detector loop were increased when the emitter plate was illuminated by ultraviolet light. Means the high voltage sparks detector loop that was in the experiment of electromagnetic radiation. उस एक्सपेरिमेंट में ये जो हाई वोल्टेज डिटेक्टर लूप था ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता था। कब? जब एमिटर प्लेट को वे अल्ट्रावायलेट लाइट से एल्यूमिनेट करते थे। सो दिस वाज द एक्सीडेंटल ऑब्जर्वेशन। द फर्दर वर्क investigation work was carried over by Hallward according to Leonard. So both Hallward and Leonard gave different observation. First I am listing about the Leonard observation. Leonard's observation. What was the Leonard observation in the photoelectric emission? The question was that when Leonard allowed to fall the UV radiation on an emitter plate of an evacuated glass tube. Evacuated glass tube means a tube which is completely sealed and evacuated, and in this tube there were two electrodes. One is called as cathode and at the other end that is called as anode. So through this window, when UV light was allowed to fall on this cathode plate, this cathode ejects electrons and these electrons start moving towards the anode, which is called as collector. But as soon as he stops the ultraviolet radiation, this movement of the electron also stops. Means movement of electron means current. The current in the external circuit to this evacuated glass tube stops as soon as the ultraviolet radiation was stopped. The next scientist, Hallward, he connected a negatively charged zinc plate. Negatively charged zinc plate to an electroscope. What is an electroscope? An electroscope is a device to detect the charge on the metal surface. electroscope एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम किसी भी मेटल सरफेस पे हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं और पाए कि the zinc plate lost its charge, means the zinc plate becomes positive. Initially the zinc plate was negative, but after connecting to the electroscope he found that the zinc plate becomes negative when it was illuminated by ultraviolet light. So how did he perform his experiment? He performed by connecting the negatively charged zinc plate to an electroscope. Then after connecting, he allowed to fall the ultraviolet light on the zinc plate. The electroscope which was detecting previously the zinc plate as negative, now after illuminating with ultraviolet light, that electroscope started detecting the zinc plate as positive. तो ये सिर्फ और सिर्फ हम आपको ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं उनका, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा स्टेप था, फर्दर हॉलवर्ड फाउंड दैट
एंड अनचार्ज, पहले हमने क्या लिया था, चार्ज, दैट इज द नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट लिए थे। अब दूसरा उन्होंने क्या लिया, अनचार्ज जिंक प्लेट लिया और उसको एलिमिनेट किया किससे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो उन्होंने पाया कि ये अनचार्ज जिंक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। यह भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन हॉलबर्ग का था। चौथा जो ऑब्जर्वेशन हॉलबर्ग ने बताया वो ये कि जो पॉजिटिव चार्ज जिंक प्लेट पे डेवलप हुआ वो पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा है जैसे जैसे हम अल्ट्रावायलेट लाइट उसके ऊपर में फॉल करा रहे हैं। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन को मिलाकर हॉलबर्ग एंड लिनार्ड ने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में एक कंक्लूजन से negatively charged particles were emitted from the zinc plate under the action of ultraviolet light. Remember, negatively charged particle. At that time, Hallberg and Lienard only told about the negatively charged particle, not as electron. Right? So later on, this negatively charged particle were known to be the electrons. In all of these observations by Hallberg and Lienard, they noticed a very important phenomena in this photoelectric emission, and that was that this ejection of electrons only take place when the UV light was of appropriate frequency. What is meant by appropriate frequency? Appropriate frequency means whatever the light which is incidenting on the cathode, that must have a minimum value, a minimum certain fixed value beyond which there is no possibility of ejection of electron. It means that ejection of electrons can only take place when the light, that is the ultraviolet radiation, was of a minimum certain value. This minimum certain value was named as threshold frequency. Threshold, ठीक है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम अपने घर के या कमरों के द्वार पे जिसे हम चौखट बोलते हैं, वही हमारा थ्रेशोल्ड है उस रूम का। जो मेन गेट है वो हमारा थ्रेशोल्ड है हमारे घर का, जो बाउंड्री गेट है वो हमारे कैंपस का थ्रेशोल्ड है, ठीक है। तो कम से कम हमको उस थ्रेशोल्ड पर जाना पड़ेगा यदि हमको उस घर के कैंपस में, उस घर के अंदर या रूम के अंदर हमको जाना है, तो हमें उस चौखट को पार करना होगा। ठीक उसी सेंस में आप लोग लीजिए कि यदि हमको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करना है, तो जो यूवी रेडिएशन जो हम फॉल कराएंगे कैथोड पे, उसका एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अगर उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर फ्रीक्वेंसी रहता है तो आप कितना भी यूवी रेडिएशन उसके ऊपर फॉल करा लिए और कितना भी सेंसिटिव मेटल प्लेट फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस होगा, फिर भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। द नेक्स्ट इज योर वर्क फंक्शन। व्हाट इज मीन बाय वर्क फंक्शन इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द कैथोड ऑन विच द यूवी रेडिएशन is falling. Work function, in some book it is represented by phi naught and in some book it is denoted by W subscript naught. अब दोनों ही नोटेशन आप लोग वर्क फंक्शन के लिए डिफरेंट बुक में पाएंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन हमारा एक ही है, दैट इज वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन किससे संबंधित है? ये वर्क फंक्शन संबंधित है हमारा उस कैथोड का मटेरियल से जिसपे कि हम यूवी लाइट फॉल करा रहे हैं। सो वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी, माइंड इट, द वर्ड मिनिमम एनर्जी
द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by the cathode material to eject an electron from its surface. भाई इलेक्ट्रॉन को हमको उसके सरफेस से निकालना है ना, जब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तब तक हमारा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं हमको, और जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा करंट हमारा फ्लो नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, आवर मेन मोटिव इज टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। सो दिस इज अगेन ए सरफेस फिनोमिना। ये मेटल सरफेस है। आप जानते हैं कि इस मेटल सरफेस के ऊपर में इस पूरे मेटल में इलेक्ट्रॉन तो है, बट दे आर नॉट फ्री एट रूम टेम्परेचर। एट ऑर्डिनरी कंडीशन these electrons are not free, and even if they are free, if they jumps from its surface, एक पॉसिबिलिटी मान लीजिए कि अपने सरफेस से जंप कर जा रहे हैं, तो होता क्या है कि जब ये अपना रैंडम वाइब्रेशन अपने मीन पोजीशन पे करता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ये मेटल सरफेस हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन फिर से क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को लीव नहीं कर पाता है। लेकिन अब हमको यहां पर चाहिए कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस से हमको इजेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यूवी रेडिएशन फॉल कराते हैं ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। तो यूवी रेडिएशन भी हमने फॉल करा दिया, लेकिन फिर भी हमारा इजेक्शन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि इस सरफेस का वर्क फंक्शन कहीं ज्यादा है। So, to eject an electron from the metal surface must be of minimum energy required. ठीक है? So this is called as the work function, and work function is always measured in SI unit, that is electron volt. You know electron volt is the unit of energy for the microscopic particles. So 1 electron volt is equal to how much? 1.602 into 10 to the power minus 19 joule. This is 1 electron volt. Okay? So this is about the work function and threshold frequency. ये तो इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन में कुछ हमने बताया आप लोगों को कि फोटो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड दो टर्म बेसिकली आते हैं हमारे। एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट आप लोग जानते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, वो हर्ट्ज में ही मेजर करेंगे। और वर्क फंक्शन, इट इज एन एनर्जी, सो इट्स ऐसा यूनिट इज जूल। तो वर्क फंक्शन हमारा मेटल्स का प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से रिलेटेड है। नाउ लेट अस कम टू द आवर मेन टॉपिक, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो व्हेन वी रिक्वायर टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, there can be a 3 process. Thermionic emission, पहले तीनों एमिशन प्रोसेस का हम नाम लिख देते हैं और उसके बारे में ब्रीफ हम बता दे रहे हैं कि तीनों प्रोसेस हैं कि हम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ हमको एक ही प्रोसेस पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है? थर्मियोनिक मीन्स ऐसा एमिशन जो हम कैथोड प्लेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं। हीटिंग प्रोसेस के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है उसको हम थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। सेकेंड इज योर फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है? फील्ड जैसे कि नाम आया, इसमें हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो भी हमारे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से हमारे इजेक्ट होते हैं। और तीसरा है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, एंड दिस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज टू बी स्टडीड इन दिस चैप्टर ओनली। इसी को हमको पढ़ना है। फोटो comes from photon, that is light. Photo electric effect. We can define photoelectric effect as
the process of ejection of electron from the surface of photosensitive substances with application of light of appropriate frequencies. Each and every word are countable. Appropriate frequency, right? So this is your photoelectric effect. Now photoelectric effect can be studied potential difference. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम किसके कारण हम स्टडी करेंगे? पहला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, उसको चेंज करने से वो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में क्या इफेक्ट होता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या इफेक्ट होगा, करंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसका नेचर कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि रिवर्स होगा, ये सब हमको पढ़ना है विद द। नाउ सेकंड इज योर frequency of light, frequency of light used। जो भी हम लाइट यूज करेंगे इजेक्शन प्रोसेस के लिए, उसमें फ्रीक्वेंसी, लाइट का फ्रीक्वेंसी का क्या महत्व होगा। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसका करंट वैल्यू जो होगा वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो उसका जो ग्राफ जो होगा हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है। तो एक एक ग्राफ हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद थर्ड है हमारा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। By keeping these three factors changing one by one, we will study the photoelectric effect.